کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی امجد شیئر کر رہے ہیں۔ امجد کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے جو کہ ایک آٹو ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور۔ اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پرانی بات ہے۔ سردی کا موسم تھا، سردی کی سخت ٹھنڈی راتیں تھیں، دسمبر کا آخری ہفتہ جا رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک میرے جاننے والے عزیز تھے، ان کا فون آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کچھ ضروری سامان ہے، یہ سامان آپ نے ہمارے گاؤں پہنچانا ہے اور آج ہی پہنچانا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تھے تو میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، میں انکار نہیں کر سکا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا سامان آپ کے گاؤں پہنچا دوں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی کلینک پر تقریباً 10 بجے کے قریب گیا۔ انہوں نے مجھے 10 بجے کا ہی ٹائم دیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ کچھ ضروری سامان تھا وہ دے دیا۔ میں نے اپنے رکشے میں وہ سامان رکھا۔ گاؤں کا ایڈریس انہوں نے مجھے سمجھا دیا۔ پہلی بار میں نے اس گاؤں کی طرف جانا تھا۔ جب میں نے وہ سفر شروع کیا تو امجد کہتے ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں اور میرا وہ دوست ہے وہ بھی سرگودا کا ہی رہنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سفر شروع کیا، سخت سردی تھی، اب میں آرام سے رکشہ چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ جو راستہ انہوں نے مجھے بتایا اس کو کراس کرنے کے بعد اب آگے وہ گاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، 16ویں رسالے والی سائڈ پر۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس طرف جا رہا تھا تو میرے دونوں اطراف میں بے تحاشا بڑے بڑے جس طرح سے جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں وہ ایک سڑک تھی۔ رات 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جا کس طرف رہا ہوں۔ اتنی سنسان سڑک تھی، اتنی اس طرف جھاڑیاں تھیں، وہ بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں جن کے اوپر سفید کلر کے وہ کچھ پودے سے بنے ہوتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا رکشہ تیز کرنے کی کوشش کی، دھند بھی تھی اس طرف، اتنا خاص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے پھر رکشہ سلو کرنا پڑا۔ بالکل درمیان میں کہیں جا کر میرا رکشہ بند ہو گیا۔ اب بیچ اس کچی سڑک کے میں کھڑا ہوا تھا اور رکشہ بند۔ میں بڑا سخت پریشان کہ اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ جیسے میں رکشے سے نیچے اترا میں نے رکشہ چیک کیا، رکشہ بالکل ٹھیک تھا، پیچھے سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ تبھی میں تھوڑا سا رکشے کو پیچھے سے پش کرنے لگا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے رکشہ جیم ہو گیا، یعنی وہ آگے اس کو دھکیلنے کی کوشش کے باوجود رکشہ میرے سے دھکیلا نہیں جا رہا تھا۔ اب میری پریشانی بہت زیادہ بڑھنے لگی کہ میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گا۔ تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھنے لگا، رکشے کی لائٹ میں نے تیز کر دی۔ آگے بڑھنے لگا تو مجھے بچوں کی آواز آئی، جس طرح سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ کھیل رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید میں آبادی کے قریب ہوں، اور ان لوگوں نے بتایا تھا کہ جہاں یہ سڑک ختم ہوگی اس سے تھوڑا ہی آگے لیفٹ سائڈ پر تم جاؤ گے تو ہمارا بہت بڑا گھر ہے، ایک حویلی نما ان کا گھر تھا اتنے ویرانے میں۔ لیکن جب مجھے بچوں کی آواز آئی تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یہاں پر کوئی بچے ہیں۔ میں ان بچوں کی آواز کے تک میں تھوڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ اب اس طرف تو رکشے کی لائٹ نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے رکشے سے ایک ٹارچ لی، میں اپنے پاس اکثر ٹارچ رکھتا تھا رات کے وقت، کبھی کبھار رکشہ بند ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا تو ٹھیک کرنا پڑتا تھا۔ ٹارچ جلا کر جو ہی میں اس آواز کے تک میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جس طرح سے انہی جھاڑیوں سے ہٹ کر ایک جگہ ہے، جس طرح سے کوئی گراؤنڈ ٹائپ جگہ ہوتی ہے، وہاں پر 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچی اور 2 بچے۔ بالکل ان کے جسم پر لباس نہیں ہے، صرف ان لوگوں نے وہ چھوٹی چھوٹی سی نکرز پہنی ہوئی ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ اتنی شدید ٹھنڈ تھی کہ جسم کو وہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، پورے جسم کے اندر جا رہی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے بچوں کو آواز دی، بیٹا یہاں پر کوئی گھر ہے، میری مدد کرو۔ وہ عجیب و غریب طرح سے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ میں ان بچوں کے قریب جا کر جو ہی میں نے ان کی طرف لائٹ کی تو جو بھیانک میں نے ان کے چہرے دیکھے، ان کے چہرے اس حد تک خوفناک تھے جس طرح سے
बकरे के मुंह होते हैं, बच्चों के जिस्म के ऊपर बकरे के चेहरे थे बाकायदा, यानी जिस्म किसी इंसानी बच्चे का, ऊपर जो सर है वो बकरों का लगा हुआ है और काले रंग के सर, जिस्म सफ़ेद थे और काले बकरे के सर इंसानी जिस्म के ऊपर लगे हुए थे। उनको जब मैंने देखा मेरी तो इतनी शदीद हालत अजीब सी, मेरी चीख निकली और मैं भागा पीछे की तरफ। जो ही मैं पीछे की तरफ भागा तो मैं अपने रिक्शे में आया, मैंने रिक्शे को स्टार्ट किया, रिक्शा स्टार्ट हो गया। मैंने बड़ी तेज़ी से वहाँ से रिक्शा निकाला तो मुझे उन बच्चों की यूँ आवाज़ आई कि जिस तरह से वो बच्चे बेहाने कहके लगाकर हंसने लगे हैं। जो ही वो सड़क ख़त्म हुई तो वहाँ से एक दाईं तरफ एक मोड़ आ रहा था। वहाँ पर जब मैं मुड़ा तो वो भी एक कच्ची सड़क थी। उस सड़क पर बिल्कुल एंड पर मुझे एक रोशनी सी नज़र आई, जिस तरह से कोई बल्ब जल रहा है। मैंने रिक्शा जाके डायरेक्ट उसी जगह पर मैंने ब्रेक लगाई। जो ही ब्रेक लगाई वो एक घर था। घर खासा बड़ा था, जिस तरह से मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था, लेकिन इतने पढ़े लिखे इंसान का घर इतने वीराने में, ये चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल हटके थी। आस पास दूर दूर तक कोई घर तो था ही नहीं। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ झाड़ियाँ, वीराने, और ऐसा लग रहा था कि चुन के उनके दरमियान में ये एक घर रखा हुआ है। गेट मैंने जब देखा तो वो अंदर जाके बिल्डिंग थी और गेट बिल्कुल बाहर था और उसके जो घर का हिस्सा था वो अंदर की तरफ था। आस पास भी खासी खुली जगह थी। बड़ी बड़ी लाइट्स तो लगी हुई, गेट पर जो बल्ब लगे होते हैं, वहाँ पर बेल लगी हुई थी। मैंने बेल बजाना शुरू कर दी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने बेल बजाई, कोई जवाब नहीं, कोई भी नहीं है। मेरे पास मोबाइल होता था, मैंने मोबाइल पर डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहा तो उनका वहाँ पर सिग्नल ही नहीं थे। बिल्कुल इलाका गैर में, मुझे तो लग रहा था कि मैं वीरानों में, यहाँ पर सिग्नल कैसे होंगे, कोई सिग्नल विग्नल नहीं थे। अब मेरा दिल ये सोच आई कि मैं इस दीवार को फलांग कर जाता हूँ, घर जाकर दस्तक देता हूँ। सर्दी इतनी ज़्यादा है, शायद वो लोग अंदर हैं, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो जो 4 दीवारें थी, जो गेट था, वो इतने ऊंचे नहीं थे, यहाँ तक कि एक नॉर्मल कद काट का इंसान अगर उस गेट के पास खड़ा होता है, दीवार के पास खड़ा होता है, तो झांक के अंदर भी देख सकता है। मैंने क्या किया, मैंने फिर बेल बजाई, कोई जवाब नहीं। ऐसे ऐसे मुझे बातों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आसपास तो कोई था ही नहीं। लेकिन आवाज़ें ऐसी थी कि जिस तरह से कुछ मर्द और औरतें बातें भी कर रहे हैं, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा था। मैंने क्या किया कि मैं एकदम से मैंने दीवार में फलांगा, डरता डरता। अब वहाँ पर वो जो इमारत थी, जो घर था, उसकी तरफ मैं बढ़ने लगा। गेट से वो जो घर का हिस्सा था वहाँ तक तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लें तो 25 से 30 कदम तो होंगे ही, या शायद इससे भी ज़्यादा। मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ था। घर था पुराना, लेकिन बना बड़ा खूबसूरत हुआ था। मैंने उस दरवाजे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी। बहुत ज़ोर से मैंने दस्तक दी। अब अंदर से मुझे बाकायदा आवाज़ें भी आ रही थी, जिस तरह से अंदर कोई मौजूद है, जैसे कोई टीवी चल रहा है, या कोई जिस तरह से कोई इस तरह से था कि या कोई मोबाइल पर कुछ देख रहा है या टीवी चल रहा है। बजा बजा कर दरवाज़ा, खिड़कियों के आगे पर्दे, कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना मोबाइल के सिग्नल। मैंने ये सोचा कि मैं वो सारा सामान वहीं पर रखता हूँ और वापस आ जाता हूँ। मैं डॉक्टर साहब को जाकर बता दूंगा, इससे ज़्यादा तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जो ही मैं वापस आने लगा तो मुझे बाकायदा लगा कि जिस तरह से मेरा नाम किसी ने लिया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो अपना नाम अभी किसी को बताया भी नहीं है, तो ये मेरे नाम का कैसे किसी को पता चला। पीछे पलट कर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक औरत खड़ी हुई है। औरत बाकायदा दरवाजे से आधी बाहर आई हुई है और मेरा नाम लेकर कह रही है, अमजद इतनी देर से आई हो तुम? मुझे लगा कि शायद डॉक्टर साहब ने फ़ोन करके बता दिया होगा कि मैंने सामान देने आना है, उन्होंने मेरा नाम भी बता दिया होगा। मैंने कहा कि बाजी मैं तो कब से दरवाज़ा भी खटखटा रहा हूँ, गेट भी, आप लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। तो मैं सामान देने आया था, मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। इतने में वो कहने लगी कि आज तो ये दीवार फलांग कर आई हो, दोबारा ये गलती ना करना, अब गेट खोलो और गेट की तरफ से आओ। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे से गलती तो हुई है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं गया, मैंने गेट खोला। गेट खोलकर मैं अपना रिक्शा अंदर लेकर आया। अंदर लाकर सामान जो ही मैं निकालने लगा तो वो जो औरत थी वो अंदर चली गई और उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा,
कोई रोशनी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की लाइट चली गई है, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। मैं सामान रखने लगा तो मैंने दरवाजे पर फिर दस्तक दी कि बाजी ये सामान मैंने इधर रख दिया है, सारा सामान मैंने रख दिया। इतने में जो ही मैं वापस पलटने लगा तो मुझे फिर उस औरत की आवाज़ आई कि अमजद ये पैसे लेते जाओ। जब उसने मुझे पैसों का कहा तो मैं रुक गया और मैंने कहा कि जी मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे पैसे पकड़ा दें। इतने में वो जो औरत थी उसने कहा कि पैसे अंदर आकर ले लो, कोई बात नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं झिझकते हुए जब अंदर गया तो मध्यम सी रोशनी थी पूरे घर में, जिस तरह से जीरो लाइट का ब्राउन कलर का बल्ब चल रहा है। घर अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तभी क्या देखता हूँ कि सामने कुर्सी के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, उसके हाथ में पैसे हैं, उसकी मेरी तरफ कमर है और उसने यूं हाथ किया और कहती है ये पैसे पकड़ लो। जो ही मैं पैसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो वो जो मैंने 3 बच्चे देखे थे, वो जो उधर उस ग्राउंड में बच्चे बैठे, तीनों बच्चे उस औरत के सामने बैठकर वो ही बकरों वाली शक्ल, जैसे इंसानी धड़ के ऊपर बकरे का सर रखा हुआ है, और वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरी चीख निकली एकदम से, मैं खौफजदा हुआ, इतना खौफजदा हुआ कि मैं पीछे हटा और मैं गिर गया। जो ही मैं गिरा तो वो जो बच्चे थे एकदम से बच्चे गायब हो गए। औरत सामने अंधेरे में खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थी। बस मुझे यही था कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं। मैंने फिर पलट कर नहीं देखा, मैं अल्लाह अकबर करता बाहर भागा। मैंने अपना रिक्शा स्टार्ट किया, मैंने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया, मैंने कोई गेट बंद नहीं किया। मैं वहाँ से जब वापस आ रहा था तो बाकायदा मेरे रिक्शे के पीछे जिस तरह से कोई भाग रहा था, जिस तरह से बाकायदा कोई जानवर भागता है, और खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी उस पूरी सड़क के ऊपर जो आसपास झाड़ियों से ढकी हुई थी। उस कच्चे रास्ते पर मैंने धुंध की परवाह किए बिना अपनी जान बस बचानी थी। मुझे ये था कि मैंने यहाँ से एट एनी कॉस्ट हर सूरत निकलना ही निकलना है। इतना मैंने तेज़ रिक्शा चलाया, मुझे धुंध में कुछ नहीं भी नज़र आ रहा था, तो बस मैं अल्लाह तवक्कल जा रहा था। मुझे जहाँ पर जाते हुए 30 मिनट लगे, वहाँ पर मुझे वापसी पर मैंने इतना तेज़ रिक्शा चलाया कि 10 मिनट में मैं मेन रोड पर था। जो ही मेन रोड पर पहुंचा तो डॉक्टर के फ़ोन शुरू हो गए। मैंने डॉक्टर का फ़ोन उठाया, सांस मेरा फूला हुआ। डॉक्टर ने कहा कि किधर हो तुम? मैंने उससे कहा कि मैं अपनी जान बचा कर निकला हूँ। उसने कहा क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा ये आपने मुझे कहाँ भेजा था? इतने वीराने में आपका घर है। इससे पहले मैं कुछ बोलता तो वो ये कहने लगा मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे से गलती होगी। घर वाले तो आज घर पर हैं ही नहीं, वो हमारे इलाके में कोई शादी थी तो सारे वहाँ पर गए, घर पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। शाम तक वो लोग इधर ही थे, अचानक उनका प्लान बना और तुम्हें मैंने जहमत दी तो वहाँ पर दरवाजे खटखटाकर वापस आ गए। मैंने उससे कहा कि मैं दरवाजे खटखटाकर वापस नहीं आया, वहाँ पर मेरे साथ ये सारा हादसा हुआ है। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अब कस्में उठा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसने मुझे कहा कि मेरे शहर वाले घर पर तुम पहुँचो जल्दी। तकरीबन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे 12:30 पौने 1 हो गए। डॉक्टर के घर पहुँचा, मैंने जाकर डॉक्टर को सारी बात बताई। उधर ही बैठकर डॉक्टर ने अपनी वो जो उसकी फैमिली थी, मिसेस ही बच्चे थे, उनको फ़ोन किया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो अभी भी वापस नहीं आए हैं, हम लोग तो वो जिधर शादी थी उधर ही रुके, उनके कुछ अपने ही दूर पार के रिश्तेदार थे तो उधर ही रुके, हम लोग सुबह घर जाएंगे। मैंने उनसे ये कहा कि आपके घर में मैंने एक औरत भी देखी है और इस हुलिये के 3 बच्चे भी देखे जो उस वीराने में। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताना शुरू किया कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। अक्सर हम लोगों को भी, जो हम लोगों के घर का बाहर वाला हिस्सा है, वहाँ पर एक औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने गले में हिफाजत के तावीज़ डाले हैं। जब से हम लोगों ने अपने गले में हिफाजत के तावीज़ डाले हैं, हमें वो मखलूक नज़र नहीं आती। और जिनसे हमने ये तावीज़ात लिए थे उन्होंने ये कहा था कि जब तक आपके गलों में ये तावीज़ रहेंगे वो आपके सामने नहीं आएंगी। हम लोगों का वो जो घर है वो किसी दौर में हम लोगों का एक फार्म हाउस होता था, मेरे वालिद साहब का। तो जब जायदाद का वो सारी तकसीम हुई तो मेरे हिस्से में वो जगह आ गई। इधर शहर में मैंने अपना घर बनाया तो मेरे बच्चों को शौक़ था उस घर में रहने का, वो घर भी हमने सेट किया। अक्सर सर्दियों के मौसम में वो लोग वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब से हम लोगों के साथ जिन्नात के मामलात हुए, वहाँ पर आना जाना हम लोगों ने कुछ कम कर दिया। ये सामान इसलिए वहाँ पर चाहिए था कि उन लोगों ने दिसंबर की जो 10 छुट्टियाँ थी वहीं पर गुजारनी थी।
मैं इस हद तक खौफजदा हुआ कि उसके बाद मैं उन डॉक्टर साहब से मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे कई दफ़ा कॉल्स आई कि तुम आओ, हम तुम्हें वहाँ पर खाना खिलाएंगे। मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर जाना ही नहीं है, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मैं बहुत सख्त बीमार रहा, मुझे कोई चीज़ सोने नहीं देती थी, मुझे डरावनी आवाज़ें आती थी, मुझे खौफ आता था। जब भी मैं सोने की कोशिश करता था, मेरी आंखों के सामने उन बच्चों की शक्लें, उस औरत की वो चमकीली आंखें आ जाती थी। अभी उसका तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा था, सिर्फ आवाज़ सुनी थी। आवाज़ उसकी बिल्कुल नॉर्मल औरतों की तरह थी। मैं नहीं जानता कि वो डॉक्टर की फैमिली वहाँ पर कैसे रहती है, किस तरह से वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं उस वीराने में, जहाँ पर मेरे ख्याल से तो इंसान का वजूद भी नहीं है, कि वहाँ पर किस तरह से कोई इंसान वहाँ पर रह सकता है। ये मेरी एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मैं आज भी एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी ज़िंदगी में उसके बाद भी कुछ वाक़यात हुए, लेकिन ये उन सब में से इतना ड्रावना एक किस्सा था, इतना भयानक एक वाक़या था जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। मैंने इसके अलावा भी जिन्नात को देखा है, और मैं सर्दी की रातों में अक्सर मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जब देर रात के मैं किसी सुनसान वीरान सड़क से गुजरता हूँ, किसी सुनसान वीरान रास्ते से आता हूँ। मुझे बहुत दफ़ा उन लोगों ने दोबारा भी बुलाया, पर मैं नहीं गया। जब मैं सो नहीं था सकता तो मैं एक साहिब इल्म के पास गया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम जिस जगह से होकर आए वो बहुत आसीब ज़दा जगह, वहाँ पर जिन्नात बेतहाशा है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का ख़ास करम था, फजल था जो तुम बच के वहाँ से आ गए, वरना जो इंसान जिन्नात के इतने पास चला जाए वो जिन्नात उसे इतनी आसानी से छोड़ते नहीं अगर वो सामने आ जाए तो। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अमजद आपका। जिसमें बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अजीबो गरीब और खौफनाक भयानक वाक़यात हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आने वाले अगले लम्हे में हमारे साथ क्या हो जाए और क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं अपनी हिफाजत की, अपनी सलामती की दुआ मांगा करें। जब हम अपनी हिफाजत सलामती की दुआ मांगते हैं, अपने ऊपर हिसार रखते हैं, तो अल्लाह हमें जिन्नात के ऐसे हमलों से हमेशा बचा कर रखता है। वीरानों में, सुनसान जगहों पर जो भी घर बनाते हैं उनके साथ ये वाक़यात होते ही रहते हैं। ये थी आज की कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज एक खौफनाक कहानी आएगी, उसको विज़िट करिएगा। खूनी सैटरडे पर मैं कल स्टोरी पोस्ट करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।